Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Anna Mahmood and welcome to our show Conversation Traders. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में रंग नहीं होते तो ये दुनिया कितनी बेजान हो जाती? शायद इसीलिए दुनिया बनाने वाले ने इसमें रंग भर दिए। तो आइए मुलाकात कीजिए ऐसे ही रंगों से कैनवस पर जादूगरी करने वाली एनल हक से, जो कि ना सिर्फ एक पेंटर हैं बट एक फैशन डिज़ाइनर हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम एनल हक, क्या हाल है? I'm good. How are you? How is life going? Alhamdulillah, it's going great. I was so excited to meet you and talk to you about your life experiences, about your paintings. माशाल्लाह आपकी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती हैं। Thank you. तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, एक गेम सेगमेंट भी खेलेंगे और काफ़ी नॉलेज हम आपसे हासिल करेंगे। I'm so excited for that. स्टार्ट करते हैं। Yeah, sure. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि when did you discover that you want to become an artist and who was your inspiration? Okay, I didn't discover that so early because from my childhood I was into art like drawing and painting. Regular subject से थोड़ा सा हट के मुझे जो सबसे ज़्यादा enjoy करती थी वो मैं drawing and painting and I was so good in that. But by the time मुझे realize होने लग गया कि बाकी सब सब्जेक्ट से एक्सपर्टीज मेरी इसमें ज़्यादा है. So I just start doing it more and more. And after my intermediate, I did a diploma in fashion designing. And after that diploma, that totally changed my mind. उस डिप्लोमे के बाद तो मुझे ये लगा कि बस अब मुझे इसी फील्ड में जाना है. So I was doing pre-engineering and I stopped. Oh my God! I just leave that and went into the field of art. Okay, So nice. the inspiration actually by my work and my interest was there, but my mother was a fashion designer as well. She was running her boutique, so it was also a kind of, you can say an early inspiration for me. Nice. So were your parents supportive about your interest in art? They were supported in the sense कि हाँ ठीक है art करना is good, but they were not supported for the art education because आजकल तो फिर भी इतनी awareness आ गई है कि parents support करते हैं इस चीज़ को, but on that time parents were not like that. They were like कि doctor and engineer ही होना चाहिए, जो कि mostly concept होता है पाकिस्तान में. But I did it कि मुझे ये करना है तो करना है. So I took a stand and worked on that. बिल्कुल stand लेना पड़ता है. अच्छा, what are the other hobbies that you do besides painting? Beside paintings, I love reading, I like to write, and I enjoy my me time in which I try to, learn something new, anything it would be. अच्छा इनर, मैंने आपकी जो है वो पेंटिंग्स देखी थी, तो can you please tell us के what types of paintings do you create? Actually, there is different level because it depends on your mindset as well. Sometimes most of my work is related to women and human nature as well. क्योंकि मैं emotions को paint करती हूँ mostly. Some feelings are hidden, like we don't express it. Like हम normally express नहीं कर सकते हैं कुछ feelings को. So that feelings I express in my work. Mostly, yeah. But इसके अलावा भी some projects होते हैं जिसमें research work होता है, तो that those paintings are different from that. Right. वैसे what's your favorite color? That's a very difficult question for an artist. And for me at least it's so difficult because I like all colors and it depends on my mind and my mood, you can say. Right. So it's I cannot say one color because I like every color. सही, बिल्कुल. अच्छा एक कोट है कि पेंटिंग इज अ साइलेंट पोएट्री एंड पोएट्री इज अ पेंटिंग दैट स्पीक्स. तो आप अपनी पेंटिंग्स में क्या मैसेज कन्वे करती हैं? मोस्टली मेरी पेंटिंग में जो मैसेज होता है वो अपने आप को एक्सप्लोर करने का होता है, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड होता है. बिकॉज आई थिंक इफ अ पर्सन हैज डिस्कवर्ड हिज सेल्फ ही कैन डू एनीथिंग. सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ माय पेंट वर्क. अच्छा आपके ओपिनियन में कि इंसान, कोई भी इंसान आर्टिस्ट बन सकता है या ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है? ये गॉड गिफ्टेड तो टैलेंट होता है, बट आई बिलीव दैट एवरी पर्सन इज एन आर्टिस्ट. आई बिलीव दैट इवन जरूरी नहीं है आर्टिस्ट इज डूइंग आर्ट वर्क, हर फील्ड में आर्ट है. इवन इफ यू आर अ शेफ यू आर डूइंग इन आर्ट वर्क, इफ यू आर अ टीचर यू आर डूइंग इन आर्ट वर्क. So art is everywhere. वो हम लोग पे हम उसे accept कर लें that art is everywhere and we all are artists doing our job. Beauty is in the eye of the beholder. Yes. Right.
अच्छा, वैसे यू क्रिएट पेंटिंग्स, तो कितनी देर लग जाती है एक पेंटिंग क्रिएट करने में? ये अगेन आई विल से कि डिपेंड्स, बिकॉज कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि वो मंथ्स ले लेती हैं, Right. लाइक यू नो उस पे काम किए जा रहे हैं, बीच में आप उसको स्टॉप करना पड़ता है, पेंटिंग खुद आपसे बोलती है कि अभी और वर्क चाहिए मुझे ना, बट सम पेंटिंग्स आर लाइक यू नो within 2 days they are ready. So it depends, it's depend on your mind situation as well, it depend on the subject as well, what you are painting, so that's all connected to it. अच्छा, एक सवाल है कि जब हम पेंसिल से काम कर रहे होते हैं और कोई गलती हो जाए तो हम उसको रब कर सकते हैं, पेन से काम कर रहे होते हैं तो हम उसको वाइटो यूज कर सकते हैं, बट जब आप पेंट कर रही होती हैं तो आप से कोई गलती हो जाए, आप उसको किस तरह से कवर करती हैं? हाँ, that's a very interesting question actually. पेंट हो जाए, it depends आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं. If you are talking like eraser and Vito, तो अगर आप ऑयल पेंट और एक्रेलिक पेंट यूज कर रहे हैं तो यू कैन ओवरलैप एंड हाइड दैट मिस्टेक, बट इन वाटर कलर मीडियम यू डोंट हैव दिस चॉइस, सो यू कैन नॉट डू दिस. बेसिकली होता यह है कि पेंटिंग आर्ट जो है हम लोगों को यही लर्न करवाती है कि अपनी मिस्टेक्स को कैसे कैरी करते हुए यू हैव टू बी यू नो ब्लूम. So it's like that. Painting is like that. If there is a mistake, yes, there is, but you have to you have to cover it like that. It look awesome. तो ये मिसाल इंसान से अपनी जिंदगी में होने वाली गलतियों पे भी है कि कवर Yes. कर दो. Not cover कर दो. The thing is that the first thing is that you accept your mistake. पहली चीज, जहाँ एक इंसान ने ये मान लिया कि हाँ उससे गलती हो गई है, Okay. तो समझें कि वो गलती आधी आपने एक्सेप्ट करके ही उसको फिनिश कर दिया. Once you accept your mistake, you know how to do it, how to balance it. और नेक्स्ट टाइम आपको रिपीट नहीं करनी है. गलतियों से इंसान लर्न करता है, तो गलतियां भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. मुझे ये बताएं कि कभी आपने अपनी फैमिली को इनवाइट किया होगा अपनी एग्जीबिशंस पे, आर्ट एग्जीबिशंस पे, तो वो कितना प्राउड होते होंगे देख के, Yes. और मतलब वो इतना अच्छा फील करते होंगे कि हमारी बेटी ने अपने शौक से ये लिया था एंड नाउ शी इज वेरी Actually,
और थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला, आप हमारे पास आए, आपने हमसे इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन, इतनी इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन शेयर करी एंड इट वाज Thank you so ट्रूली much. वेरी I'm so glad to be here. here. Same here. चलिए जी, आप लोग से भी फिर मुलाकात होगी एक नए आर्टिस्ट के साथ और एक नई कहानी के साथ। और जैसे कि आज हमने सीखा कि इंसान को अपने ड्रीम्स पे बिलीव होना चाहिए कि यार अगर मुझे ये शौक है तो मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि इसी से मुझे खुशी मिलती है और मेरे ख्याल से दूसरे भी फिर इंस्पायर होते हैं कि हाँ यार हमें भी अपने ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए। और पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहती है बट अपनी क्रिएटिविटी को भी हमें फ्रीली इनहेंस करना चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अना महमूद के साथ खुदा हाफिज़।